Welcome to PyMates. In this video, we'll be discussing the trigonometric ratios of some specific angles. In our previous videos, we have already discussed the topic of trigonometric ratios and its applications. In this video, we'll be discussing some specific angles and their values for all the trigonometric ratios. So let's begin. We'll be discussing some specific angles which are 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. So we'll be talking about these 5 angles. So make sure you watch the video till end as I'll be giving you an easy method to learn all these values in just a minute. So let's begin. First, we'll be discussing all the angles one by one and then we'll be discussing all of them together in a particular table. So theta is equal to 45 degrees. Consider an angle ABC right angled at B whose one angle is 45 degrees. तो हमने assume कर लिया एक angle 45 degrees है और ये 90 है. अगर हम angle sum property use करें तो angle C will also come out to be 45 degrees. Now, as angle BAC equals angle BCA, so we can say BC is equal to AB. Why? Because we know sides opposite to equal angles are equal. So that means the side BC is equals to AB. So let us assume AB is A units and BC is also A units. तो ये दोनों A units हैं तो we should also know AC. अब since इस वीडियो में हम trigonometric ratios that is sin, cos, theta, tan, cosecant, cot ये सारे जो हमने पढ़े थे इनकी values पढ़ने वाले हैं. तो इन सब के फॉर्मूलाज के लिए हमें P, H एंड B तीनों पता होने चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है राइट एंगल के ऑपोजिट साइड. तो उसको निकालने के लिए वी विल बी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ABC AC square equals AB square plus BC square. Hypotenuse का square is equal to the perpendicular square plus base square. So AC square will be A square plus A square because AB भी A है और BC भी A है. So यहाँ से हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी A root 2 units. So that means AC is A root 2. So AB equals BC equals A units and AC is A root 2 units. Now in this figure, let us assume this angle is theta which is 45 degrees. तो जब हम थीटा एंगल को कंसिडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा यही होगा जो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है हमेशा. थीटा के लिए बेस हमारा AB हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज वन बाय वन. सो साइन थीटा हमारा P बाय H होता है विच इज BC बाय AC. तो इसके अंदर बस हम वैल्यूज पुट कर देंगे विच इज A by A root 2. तो from here A और A cancel हो जाएगा तो we can say sin 45 is 1 by root 2. Similarly we can calculate cos theta AB by AC. तो फिर से वो A by A root 2 आ जाएगा तो cos 45 हमारा 1 by root 2 हो जाएगा. Now tan theta is P by B. तो similarly हम सारी values एक एक करके put करेंगे and we will be able to calculate all of them one by one. फिर से मैंने यहाँ पर सेम कलर्स दो के लिए चूज करे हैं. Why? Because as we know tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं तो हम वो वैल्यूज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 एंड 1 दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सिमिलरली cos और secant दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं एंड cosecant और sin ये हर एक वैल्यू में हर एक एंगल में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही आएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंगल. अब फॉर एंगल 30 एंड 60 वी विल बी यूजिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. Let us consider an equilateral triangle ADC. Equilateral triangle का मतलब होता है जहां पर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. So all three angles are of 60 degree each. Now we have considered a perpendicular BC. That means ये 90 डिग्री का एंगल है. अब सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर है वो ऑल्टीट्यूड की तरह भी काम करेगा. दैट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट एवरीथिंग इज सेम और वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा. दैट मीन्स वो एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट इज 30 एंड 30 डिग्री. सो AC is 2A, AD is 2A and CD is also 2A. So all three of the sides are of same length. क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर किया और ये हमने खुद से लेट कर लिया कि तीनों साइड्स की लेंथ 2A यूनिट्स है. बट सिंस ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वी विल ओनली कंसिडर द ट्राइंगल ABC.
तो ABC के अंदर वी नो दैट AC इज 2A यूनिट्स, AB इज A यूनिट्स, क्योंकि ये पूरा 2A था तो हाफ हमारा AB A यूनिट्स हो जाएगा। अब हमारे पास BC मिसिंग है, सो फॉर BC वी विल अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। So let us find out the value of BC. So in triangle ABC Pythagoras theorem use करके AC is 2A units, तो हमने 2A put कर दिया and AB हमें A given है। BC we have to calculate. BC square equals 3A square, that means BC equals A root 3 units. So that means BC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, इसमें हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है और एंगल्स भी पता है। So let's move on. First we'll consider angle 30 degrees. तो theta equals 30 degrees. So the figure is this. तो ये हमारा right angle था. This was 60 degrees and this was 30 degrees. तो यहाँ पर theta angle हमारा 30 degrees है. That is angle C. तो अब हमें तीनों sides की length पता है, तो we'll calculate all the trigonometric ratios one by one. So sin theta is P by H. तो theta के लिए अब हमारा बेस BC हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट ही होता है। सो इट इज A बाय 2A, तो अगेन A एंड A विल गेट कैंसल्ड और sin 30 की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट cos 30 which will be root 3 by 2 because BC हमारा A root 3 है and this is 2A, तो A and A will get cancelled, तो हमारे पास root 3 by 2 आ जाएगा। सिमिलरली tan 30 हमारे पास 1 by root 3 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग तीन वैल्यूज हैं वो इनके ऑपोजिट होंगी। tan 30 1 by root 3 है तो cot 30 root 3 हो जाएगा, मीन्स उनका रेसिप्रोकल। secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स 2 by root 3 एंड सिमिलरली cosecant 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 2। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज। द नेक्स्ट इज 60 डिग्रीज। तो हमारी फिगर अब सेम है बट एंगल बस चेंज हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्रीज था, ये 30 था और ये 60 डिग्रीज था, तो अब ये थीटा बन जाएगा। दैट मीन्स अब हम एंगल ए की साइड से देखेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज एंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। हमें तीनों साइड्स की लेंथ्स पता है, तो बस हम सारी वैल्यूज पुट करके साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कसीकेंट सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंगल व्हिच इज 0 डिग्रीज। तो लेट्स सी 0 डिग्रीज कैसे प्लॉट होगा। अब वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है एंड ये थीटा, इसकी कुछ अभी वैल्यू है। वी हैव टू रिड्यूस इट टू 0 डिग्रीज, दैट मीन्स ये वाली जो हमारी लाइन AC है इसको नीचे तक आना है और ये स्ट्रेट लाइन एक तरह से बन जाएगी। दैट मीन्स कैसे, ये AC C पॉइंट अब हमारा और नीचे आ गया, यहाँ तक पहुंच गया एंड फाइनली ये पॉइंट और नीचे आ जाएगा एंड ये हमारा 0 डिग्रीज बन जाएगा। सो C पॉइंट रीचेस हियर। तो C पॉइंट जब यहाँ आ गया तो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल था वो तो अभी भी यहीं रहेगा, बट यहाँ जो एंगल हमारा ये पूरा थीटा बन रहा था वो अब नहीं रहा, इट्स जस्ट अ पॉइंट वी कैन से। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्रीज हो गया। थीटा जैसे ही 0 डिग्रीज हुआ तो हमारी AC लाइन नीचे आ रही थी, दैट मीन्स ये AC एक तरह से AB के ऊपर आ गई। तो वी कैन से AC एंड AB इन दोनों की लेंथ अब सेम हो जाएगी, जो भी होगी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। एंड जो हमारी लाइन BC थी, दैट मीन्स ये पूरी लाइन ये तो अब रही नहीं, B और C कोइंसाइड कर गए दोनों पॉइंट्स, तो वी कैन से BC 0 हो गई, उसकी लेंथ 0 यूनिट्स हो गई। सो फॉर 0 डिग्रीज इस टाइप की कुछ फिगर होगी आपकी। तो ये डॉटेड लाइंस जो मैंने बनाई हैं, दैट इज ये BC जो हमारी यहाँ पर होती थी और AC होती थी वो अब नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल बन गया। अदरवाइज हमारी ओरिजिनल लाइन सिर्फ अब ये बची है नीचे वाली, यू कैन से AB और AC। तो लेंथ इनकी सेम है, AC इक्वल्स AB एंड BC 0। तो हमारा एंगल कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करता था थीटा, जो अब 0 डिग्रीज हो गया। तो सेम हम वैसे ही वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा इज P बाय H। अब P B और H हमें इमेजिनरी लेने पड़ेंगे। 90 डिग्रीज हमारा कहीं यहाँ तो हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, जो हमारा इमेजिनरी पॉइंट था AC के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला और बेस ये नीचे वाला। तो BC सिंस अब 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड AC हमारा हाइपोटेन्यूज है तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो डजेंट मैटर, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली। सो साइन 0 इज 0, साइन 0 डिग्रीज इज एक्चुअली 0, उसकी वैल्यू 0 है। कॉस थीटा के लिए AB बाय AC, तो अब AC और AB दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इसकी जगह मैं AC ही लिख दूं
और इसकी जगह भी AC, तो 1 and 1 इट विल गेट कैंसल्ड, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाती है यहाँ से हमारी। सिमिलरली tan थीटा, अगेन tan 0 0 बाय, बिकॉज फिर से न्यूमरेटर में 0 आ गया, 0 बाय AB, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली। बाकी की तीन वैल्यूज इनके रेसिप्रोकल्स होंगे। अब tan थीटा 0 है, 0 का रेसिप्रोकल विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 बाय 0, और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। व्हाट कैन वी राइट? नॉट डिफाइंड, ND इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली साइन थीटा अब 0 है, तो कोसेक थीटा 1 बाय 0 की फॉर्म का होगा, तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। एंड cos थीटा, दैट इज cos 0 1 है, तो secant 0 भी 1 आ जाएगा, 1 by 1 reciprocal, and cosecant 0 is not defined. Let's move on to our last angle, that is 90 degrees. In the end, I will tell you how to memorize all these values in just a minute. So let's understand the concept of our last angle first, which is 90 degrees. अब हमको क्या करना है, ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी एंगल है, ये जो थीटा है इसको भी हमें 90 के इक्वल लाना है। दैट मीन्स इसको भी किसी तरह स्ट्रेट लाइन बनाना है। सो व्हाट वी विल डू, ये पॉइंट A मूव करेगा, आगे आगे जाएगा, एंड ये B के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। सो ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल था, वो A पे भी 90 डिग्री बन रहा है और B पे भी। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो ये लाइन हमारी AC वाली थी, ये मूव होकर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो AC एंड BC ये दोनों की लेंथ अब इक्वल हो जाएगी, एंड जो ये लाइन हमारी AB थी, ये तो अब खत्म हो गई, फिनिश हो गई। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए, तो AB विल बी 0 इन दिस केस। सो जैसे हमने 0 डिग्रीज के लिए किया था, सेम वैसे ही इसके लिए भी अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हमें लेंथ पता है कैसे कैसे सेम है। एंगल सिंस हमारा यहाँ पर था, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। ये हम इमेजिनरी एंगल कंसिडर करते हैं। 90 डिग्रीज हमारा यहाँ पर है, जहाँ पर ये A पॉइंट था। तो साइन कॉस टैन सिमिलरली अब हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से जहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आएगा, वो वाली वैल्यूज हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल। तो बेसिकली आपको ये सारी वैल्यूज अब लर्न कैसे करनी है वो देखते हैं हम। द इंटरेस्टिंग थिंग, सो थीटा की वैल्यूज हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो अब हम ये लर्न कैसे करेंगे? वैसे ही लाइन में साइन कॉस टैन कॉट कोसेकेंट एंड सीकेंट। सो सबसे पहले आपको अगर ये टेबल ड्रॉ करना है पूरा, सारी वैल्यूज एक साथ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 लाइन में लिख लो। एंगल्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो मेक श्योर आप 45 पहले या 60 बाद में ऐसे कुछ नहीं लिख सकते। सो 0 1 2 3 4, अब सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4 एंड 4 बाय 4। अब जब आप इस सेकेंड रो जो हमने अब लिखी है, बेसिकली अगर स्टार्टिंग से देखें तो थर्ड रो, अब जब हम इस वाली रो का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। सो 0 बाय 4 तो 0 ही होता है। 1 बाय 4 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी इसका, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2। सिमिलरली यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम पहले इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा, इट विल बी 1 बाय रूट 2। इसका स्क्वायर रूट विल बी रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, and similarly ये 4 by 4 1, square root of 1 is 1. So we have got our first sine की values. Cos की values it's very easy to learn. Sin 0 और cos 90 हमारे इक्वल होते हैं। Sin 0 and cos 90 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 0 0, एंड cos 0 और sin 90 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर हमें पता है sin 90 1 है, तो cos 0 1 होगा, एंड cos 90 उसका ऑपोजिट 0 ले सकते हैं हम। नाउ sin 30 एंड cos 60 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, 1 by 2 एंड 1 by 2. You can say the values are same. You can say the values are same in this manner: sin 30 cos 60, cos 30 sin 60, and ये दोनों इक्वल होती है 45 पे, and sin 0 cos 90, cos 0 sin 90, ये वैल्यूज हमारी सेम है। नाउ नेक्स्ट इज tan. tan की वैल्यूज कैसे ऑब्टेन होती हैं? जब हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो फॉर tan थीटा आप क्या करोगे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। दैट मीन्स अगर आपको tan 0 निकालना है, तो आप sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0 मीन्स 0 by 1 is 0. नेक्स्ट फॉर 30 you will do 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, तो यहाँ से 2 and 2 will get cancelled, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 by रूट 3. सिमिलरली 1 by रूट 2 एंड 1 by रूट 2,
यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो we'll get 1। तो ऐसे हम जब साइन बाय कॉस डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास tan की वैल्यूज आ जाती है। सिमिलरली लास्ट वाले में हमारे पास 1/0 आ रहा है तो इसलिए नॉट डिफाइंड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास 3 और बचे हैं, दैट इज कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। तो वो हमारे इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, वेरी इजी, जो हमने अभी पढ़ा था। तो कॉट के लिए हम 0 है तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड के लिए फिर से 1। और या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, cot 0 and tan 90 सेम and tan 0 and cot 90 is same. Similarly, we can say 30 and tan 60 same, tan 30 and cot 60 same. तो ऐसे करके वैल्यूज हमारी सेम है, आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो एंड ये दो वैल्यूज हमारी इक्वल होती हैं 1 and 1। नाउ नेक्स्ट इज cos थीटा। So this we have studied कि secant थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको secant थीटा कैलकुलेट करना है तो आप 1/cos थीटा करोगे एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट cosecant थीटा तो आप 1/sin थीटा कर लोगे। सो दीज वर ऑल द वैल्यूज, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ देम। सिंपली आपको काउंटिंग से स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप पे आपको लिखना है 0 1 2 3 4, देन आपको 4 से डिवाइड करना एंड स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास फर्स्ट आप साइन की वैल्यूज आ जाएंगी एंड देन मैंने आपको cos tan secant इन सब के वेज बता दिए। सो दिस वाज वेरी इजी टू रिमेंबर द एंटायर टेबल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो and you have understood everything. We'll be doing some questions based on them in our next video. You can practice some examples from NCERT given before exercise 8.2. If you feel you have any doubt, you can leave the comment below in the comment section. If you have not understood anything in the video, you can also comment below, or you can give the feedback how the video was. Did you like it or you didn't? You can also follow us on Facebook and Instagram to get the latest updates. Do subscribe to our channel if you want to see more content like this and videos related to this chapter as well as other chapters.